Hello everyone, Assalamu alaikum, and we are going to discuss today's topic is long run profit function. In the earlier lecture we have already calculated the profit function, that was the short run production function, and the firm is using basically the two inputs and both are the variables. That means it's the long run. So firm is continuously changing the labor and capital as per their situation. So what will be in this condition the firm's long run profit function? So the situation and the condition and the steps are the same, but what will be the change that we will find in the long run and short run? So we see here, number one is basically the production function. Production function means the firm is basically depending on the labor and capital, and in the earlier lecture we took the function basically the f of x is equal to the x raised to power a, in which there is only one input x. But now we are taking the L and K, both labor and capital, and they have their significant contribution, propensity to produce alpha and beta. Basically these are the elasticities. अब करना सिर्फ ये है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन को इस कॉस्ट के साथ हमें यूजेज करनी है, और इसके यूजेज के बाद हम देखते हैं कि कैसे एक प्रॉफिट इक्वेशन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर वन, द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. सो रेवेन्यू पी इंटू क्यू, द प्रोडक्शन फंक्शन इज एल रेज टू पावर अल्फा and capital raised to power beta. When it will in the production with the price of the commodity, and then minus cost. Cost mean WL RK. W is the price of the labor and the R is the price of the capital. So it's very well known equation and we have discussed a lot about it. So this is the main equation of the profit. What are basically the first order condition? First order condition is very simple. We are taking the derivative of the profit equation with respect to their factors. Factors mean factors of production, labor and capital. And when we will take the partial derivative, so we know that if we are taking the derivative of this equation with respect to the labor, so the P and capital will be treated as a constant and will go to the outside. And simple, we are taking the derivative of the labor, labor raised to power alpha, and alpha will come into the base, and then alpha minus 1 in the subtraction. Later on we will take the derivative of this equation, and then RK will be the derivative of the RK will be 0, and then the derivative of the WL is equal to W. The same approach will be used for the second one, meaning the taking the derivative with respect to the capital, and we will find this equation. So when we will take the derivative with respect to the L, it will equate to the 0, it will be the equation number 1, and then taking the derivative of the profit equation with respect to the capital and equate to the 0, then it will call the equation number 2. When we have received the two equations 1 and 2, so we are basically going to solve to find out the long run profit function. And keep in your mind, what do we want actually to calculate the profit function? And the profit function is basically the function of the prices of inputs and the commodity. That means that good we are producing. अब commodity की जो prices हैं वो एक ही price है, P की हम represent करेंगे, लेकिन inputs क्योंकि दो use की जा रहे हैं इस बार, so we are using basically W and R. So any function that we are going to derive, we are going to receive, we are going to establish, it will be the function of W, R and P. अब देखते हैं कि इसके लिए कुछ स्टेप लेने हैं, जैसे मल्टीप्लाई इक्वेशन विद बाय L एंड इक्वेशन 2 बाय K. इसके लिए आसानी है कि आपका जहन में इस क्वेश्चन आ सकता है कि L क्यों लिया गया. L इसलिए लिया गया कि आप ये देखें कि जिस रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है उस ही इनपुट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बट दिस इज़ अ बैलेंस एक्शन, हम ये कर सकते हैं, और अगर हम ये एक्शन लेना है अपनी मर्ज़ी से लेना है तो हमें L को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा. नंबर 1. नंबर 2,
कि इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर आपके पास कैपिटल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया है, सो यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद द कैपिटल। अब इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा? सो P and K are the same one, alpha is the same and we are multiplying with the L, so L minus 1 dot L and W will go the other side, so it will become the positive, and again on the other side we will also multiply with the L. So the second step, before going on the second step, we will further solve it and we will see this L raised to power 1, so bases are same, the power will add, so just you will have L raised to power alpha. So you can write in this way, beta, not beta, this is price basically, price alpha and alpha L capital raised to power beta and WL। तो ये आप कह सकते हैं कि आपकी इक्वेशन बन सकती है और बन चुकी है बेसिकली। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारा एक स्टेप हो चुका है, सो वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग द सेकंड वन बाय द कैपिटल। सो सेम वन, P L raised to power alpha, beta is there, beta minus 1 is there, and K simple raised to power 1 is multiplying with the on the both side, so you will be here and you can get this equation। तो अब अगेन इसको आप सॉल्व कर लें, K रेज टू पावर बीटा माइनस 1 है, उसकी पावर 1 है, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे तो P के साथ बीटा लग जाएगा और L पे अल्फ़ा, कैपिटल पे बीटा और R के, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आप गौर से देख सकते हैं कि एक इक्वेशन आपको ये मिल चुकी है, एक इक्वेशन आपको ये मिल चुकी है जो इक्वेशन 1 और 2 से आपने ड्राइव करी है। अब इन दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है, दिस मीन अल्फा रेज टू पावर अल्फा, एल रेज टू पावर अल्फा, कैपिटल रेज टू पावर बीटा, बेसिकली दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप प्लग कर दें तो आपके पास जो आंसर आने जा रहा है वो सिंपल आने जा रहा है P अल्फा P Q W L, और यहाँ आने जा रहा है बीटा P Q R K। ये सिंपल आपके पास आंसर्स जो है यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। अब वो कहता है कि पुट द फैक्टर डिमांड फंक्शन इन द प्रॉफिट इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीअरेंज दिस थिंग एंड वी विल गेट द फैक्टर डिमांड फंक्शन। सो द फैक्टर डिमांड फंक्शन आर, लेबर फैक्टर डिमांड फंक्शन इज अल्फा P Q डिवाइडेड बाय W एंड कैपिटल फैक्टर डिमांड फंक्शन is beta P Q divided by R. So we have received two factor demand function and now we are going to plug in the profit equation to get the profit function. पहले वाले स्टेप में सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर हमें एक फैक्टर मिलता था और फिर हम उसको प्लग करते थे। यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ गया है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग रन फंक्शन है, ये आपको एग्जाम में या दूसरी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने में मददगार साबित हो सकता है। सो नाउ वी मूव फॉर दीज आर द फंक्शन। सो अल्फा P Q डिवाइडेड बाय W, दिस इज द बीटा P Q R, and now same will plug here and same we will plug here. Now we will just solve it. So we can easily observe that this W and this R are being cancelled. So what are the remaining figures? In the remaining figure, alpha W, beta R, these are the figures that cannot be solved basically. So we can write in this way, P alpha over W raised to power alpha, beta over R रेज टू पावर बीटा। ये तो आपने सिंपल देख लिया। अब P इंटू Q दोनों सेम थे और एक के पावर अल्फा एक के पावर बीटा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लें तो P Q की जो होल पावर आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा। या कि एक टर्म सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी टर्म की तरफ हम आए तो यहाँ पे सिर्फ बचा है अल्फा P Q बीटा P Q।
इसमें से दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव पी क्यू अगर आप बाहर निकाल लें तो आपके पास आंसर बचने जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये एक प्रॉफिट फंक्शन हमें रिसीव हो गया है। और प्रॉफिट फंक्शन को अगर हम गौर से देखें तो प्रॉफिट फंक्शन में कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं और कुछ कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स हैं। जैसे अल्फ़ा एंड बीटा बेसिकली प्योरली कोफिशिएंट्स कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो पैरामीटर हैं जिसमें डब्ल्यू एंड आर जो कि कॉस्ट इक्वेशन में इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। और वेरिएबल जो है हमारे पास एक जितनी क्वांटिटी हमने यूज़ करनी है ये, तो if we are observing that the profit is the function of W, R and P, so we can easily observe that the profit function have been received from this. Now the one thing is also can be added here, the profit is also the function of the Q. So it is the more specified function, how many units you want to produce and what will be the price of that thing, that is market prevailing price, and labor rate and wage rate are also decided. So you will plug all these information so you can easily find the profit, what profit you will get if the price is this, if the quantity that you are going to produce. अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हमारे पास यूजुअली जो होती है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन होती है, और अगर आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इज इक्वल टू 1 होने चाहिए। और 1 का कॉम्बिनेशन अगर हम उठा लेते हैं 0.5 बोथ हैव द सेम इलास्टिसिटी, तो प्रॉफिट फंक्शन इस तरह फिर सिंप्लीफाइड आपके पास हो जाएगा कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 और बीटा की वैल्यू 0.5 हो, सो यू कैन बेसिकली सिंप्लीफाई योर प्रॉफिट फंक्शन कि P 0.5 W raised to power 0.5, 0.5 R raised to power 0.5। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि P और Q जो है वो उनकी पावर 1 हो चुकी है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ब्रैकेट में अलग से आ गए, और माइनस ये पूरा 1 बन गया तो अगेन P इंटू Q आपके पास ब्रैकेट में आ गए। अब इसको मज़ीद आप आसान कर सकते हैं कि एक तो पहली बात ये कि माइनस 0.5 की पावर 0.5 है, और फिर 0.5 की पावर 0.5 है और 0.5 की पावर 0.5 है, तो बेसिकली ये दोनों बेस हो गए। और बेस को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है, एक तो आपने इन P और PQ दोनों आपके पास इस टर्म में सेम है, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए हम PQ पहले बाहर ले लेते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म बची हैं उसमें इन दोनों को जब हमने बेसिस सेम को ऐड करके पावर, तो सिर्फ एक हमारे पास 0.5 आ गया, तो हम इस तरह भी ले सकते हैं कि 0.5 P सिंपल इस तरह भी ले सकते हैं, और हम W और R इन दोनों की सेम पावर है 0.5, तो हम W और R को एक साथ लिख के इसकी पावर को 0.5 लिख सकते हैं। और यहाँ से अब जाने के बाद जो आपके पास चला गया तो यहाँ पर सिर्फ -1 आपके पास रह गया, और ये पूरा फंक्शन आपके पास क्लोज हो सकता है कि PQ इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लिकेशन विद 0.5 P और ये। सो दिस इज़ नॉट द मैटर कि फॉर्म इक्वेशन ये हो या ये हो, या आप यहाँ पे सवाल को ऑफ कर दें, यहाँ ऑफ कर दें या यहाँ ऑफ कर दें। क्वेश्चन इज दिस कि आपको जो प्रॉफिट फंक्शन हो वो प्रॉफिट की फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, और वो फंक्शन होना चाहिए इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस का। और ये और मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है कि इसके अंदर प्रोडक्शन भी आप डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ लॉन्ग रन फंक्शन, एंड वी कैन आल्सो प्रूव सम प्रॉपर्टीज एज वेल, because the P is in the directly proportional। so अगर या और आसान देख लेते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट प्राइस के साथ नॉन डिक्रीजिंग है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो कभी वो डिक्रीज़ नहीं हो सकता प्रॉफिट। इसी तरह से क्वांटिटी के साथ भी वो आप नोट कर सकते हैं कि वो नॉन डिक्रीजिंग है, क्वांटिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो भी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेकिन अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगी, वो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आ रही हैं दोनों, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के साथ। सो हम ये भी देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट फंक्शन जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रॉफिट फंक्शन में, उसको भी ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू लर्न अबाउट इट, एंड इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम आवर लेक्चर्स सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ and give the comments and give the feedback on our videos, so that will be very helpful to improve our quality
and whatever you want to learn, so I can manage the lectures on different topics for you. Thank you very much.